السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور شب 9 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عثمان چوہدری اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ ناظرین، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی دلچسپ اور سنسنی خیز خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ اور ملک میں کہیں شدید گرمی اور کہیں شدید بارش اور طوفان، میں عبدالقدیر آپ کے ساتھ موسم کی صورتحال شیئر کروں گا۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ سفارتی سطح پر پاکستان کی بڑی کامیابی، لاہور سے قومی ایئر لائن کی آذربائیجان کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز۔ 152 مسافروں کو لے کر پہلی پرواز باکو پہنچ گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پروازوں کے آغاز پر اظہار مسرت، تجارتی سرگرمیوں اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ دیگر دوست ملکوں کے ساتھ بھی براہ راست پروازیں جلد شروع کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ مختلف ملکوں سے تعلقات کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کے مثبت نتائج۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے لاہور سے باکو کے لیے پہلی براہ راست پرواز کو رخصت کیا۔ حکومتی اقدامات سے قومی ایئر لائن کی مالی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ پی آئی اے کے لیے نئی منزلیں اور وسعتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ رواں سال کی دوسری انسداد پولیو مہم، وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر باضابطہ افتتاح کیا۔ مہم 27 اپریل تک جاری رہے گی۔ پولیو کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مربوط حکمت عملی اور مشترکہ کوششوں سے مرض کا خاتمہ کرنا ہے۔ معاشرے کے تمام طبقات کردار ادا کریں۔ عالمی شراکت داروں کے تعاون کے بغیر موذی وائرس کا خاتمہ ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کی انسداد پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے والدین سے تعاون کی اپیل۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، علاقائی سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر گفتگو ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد بن حمود البسیدی سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ لاہور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، دونوں جماعتوں کے درمیان مثبت بات چیت، اتفاقی رائے سے معاملات حل کرنے پر اتفاق۔ ارسا میں پانی کی تقسیم کا معاملہ طے شدہ ہے جس پر سب متفق ہیں۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسٹر کا تہوار، گرجا گھروں میں عبادات کا اہتمام، ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور امن و بھائی چارے کے لیے دعائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں مسیحی برادری کے مثبت اور نمایاں کردار کو خراج تحسین پیش۔ بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی ضرورت، مسیحی برادری کی ملک کے لیے نمایاں خدمات ہیں۔ معیشت استحکام کی جانب گامزن، اڑان پاکستان ترقی و خوشحالی کا پروگرام ہے۔ مسیحی برادری نے ہمیشہ قومی پرچم میں سفید رنگ کی لاج رکھی، ان کے حقوق کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا لاہور میں ایسٹر کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فلمی صنعت کی بحالی کے لیے تاریخی اقدام، فلموں کی تیاری کے لیے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنوینر ہوں گی۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں فلم سٹی، سٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب کے لیے مختص جگہ، ڈیزائن سمیت دیگر اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ مکمل۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے ڈیجیٹل معیشت کا نیا باب، پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل ایف ڈی آئی فورم کا 29 اپریل سے اسلام آباد میں آغاز۔ دنیا بھر سے 500 سے زائد سرمایہ کاروں اور ماہرین کی شرکت متوقع۔ ڈیجیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے امکانات روشن، 2030 تک ڈیجیٹل معیشت کے ذریعے $60 ارب سرمایہ کاری کا ہدف۔
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری 4000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو روانہ کیا گیا پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,76,099 ہو گئی حکومت کی جانب سے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی بہترین سہولیات مقبوضہ کشمیر میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں تیز پونچھ اور کٹھوعہ میں متعدد نوجوان گرفتار کشمیریوں کو کشمیریوں کو املاک سے محروم کرنے کی مذموم مہم بارہمولہ میں مزید 2 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط آبادی کے تناسب میں تبدیلی مسلم اکثریتی تشخص کو مٹانے کی سازش ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی شدید مذمت وقف ترمیمی بل مسلمانوں کو آئینی حقوق سے محروم کرنے کی مذموم سازش بھارتی ریاست کرناٹک میں شدید احتجاج ہزاروں افراد کی شرکت فاشسٹ طاقتوں کو مسلمانوں کا حق چھیننے نہیں دیں گے آواز دبانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے مظاہرین غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 44 فلسطینی شہید 145 زخمی امداد کی بندش اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کی وجہ سے صورتحال سنگین مغربی کنارے میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں اسرائیل نے حماس کی جنگ بندی شرائط مسترد کر دیں فلسطین کا مسئلہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے ہمارے دل غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں اسرائیل نے فلسطین کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا اسرائیلی دہشت گردی روکنے کے لیے متحد ہونا ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں غزہ یکجہتی مارچ سے خطاب آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان ناقابل شکست رہنے والی قومی ویمنز ٹیم کی 4 کھلاڑی شامل فاطمہ ثنا ٹیم کی کپتان نامزد منیبہ علی نشرہ سندھو اور سعدیہ اقبال ٹیم کا حصہ ویسٹ انڈیز کی 3 بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کے 2 کھلاڑی بھی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب چین میں ہاف میراتھن کی انوکھی ریس پہلی بار انسانوں کے ساتھ روبوٹس کی بھی شرکت میراتھن میں 12,000 افراد کے ساتھ 21 روبوٹس نے حصہ لیا تربیت یافتہ روبوٹس نے ٹرینرز کی موجودگی میں دوڑ لگائی روبوٹس نے اختتامی لائن تک پہنچنے میں انسانوں سے 2 گنا وقت لیا اور اسلام آباد راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری آئندہ 12 گھنٹے کے دوران مزید بارش کا امکان پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں خبرنامے میں شامل کریں گے انہی خبروں کی ڈیٹیلز بھی یہاں وقت ایک بریک کا اپنا گھر ایک تحفظ کا احساس جہاں ہوتا ہے اپنوں کی خوشیوں کا پاس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہے یہ لگن ہر بے گھر منائے اب اپنے گھر کی خوشیوں کا جشن پنجاب کے کم آمدن والے 28,219 سے زائد خاندانوں کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے 31 ارب روپے سے زائد کی مالیت کے قرضہ جات فراہم کر دیے گئے ہیں 23,650 سے زائد گھروں کی تعمیر تیزی سے جاری شہری علاقوں میں 1 سے 5 مرلہ تک جبکہ دیہی علاقوں میں 1 سے 10 مرلہ تک کے پلاٹ مالکان اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے آج ہی آن لائن پورٹل وزٹ کریں یا ٹول فری نمبر پر رابطہ کریں پرخلوص قیادت بن رہی ہے خوشیوں کی ترجمان مریم نواز شریف بڑھا رہی ہیں پنجاب کے ہر بے گھر کا مان پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی حکومت پنجاب وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کے لیے نیب ٹیک لایا ہواوے کے اشتراک سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کورسز جس سے ہوگا نوجوانوں کا آئی ٹی کے شعبے میں شاندار کریئر اور ہوں گے روزگار کے بے شمار مواقع
वजीर आजम यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर के नौजवानों के लिए हवावे सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। 3 माह दौरानिया के बैन अल-अक़वामी मयार की ट्रेनिंग में क्लाउड और AI टेक्नोलॉजीज जैसे कोर्सेज पर होगी खसूसी तवज्जो और नौजवानों का मुस्तकबिल होगा यकीनी तौर पर कामयाब। मज़ीद मालूमात के लिए नेवटेक वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन हुकूमत पाकिस्तान का एक खसूसी इक़दाम। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। खबरनामे का आगाज करेंगे लाहौर से अजरबैजान के लिए बराह रास्त परवाजों की खबर से। PI ने लाहौर और अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू के दरमियान परवाजों का आगाज कर दिया है। लाहौर से पहली परवाज 176 मुसाफिरों को लेकर बाकू पहुंच गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की लाहौर से अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू के लिए बराह रास्त परवाजों के आगाज पर मुसर्रत का इज़हार किया है। उन्होंने इस इक़दाम को सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा आसिम। मुल्क की मौजूदा क़यादत ने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन शदीद माली बहरान का शिकार थी। हुकूमत की मौशी टीम के मौसर इक़दामात से जहां इस कौमी एयरलाइन की माली हालत में बेहतरी हो रही है, वहीं PIA की नई मंजिलें और वसअतें भी सामने आ रही हैं। लाहौर और बाकू के दरमियान परवाजों का आगाज भी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। लाहौर से पहली परवाज 176 मुसाफिरों को लेकर बाकू पहुंची। इस हवाले से लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात के फरोग के लिए की जाने वाली सिफारती कोशिशों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में PIA की परवाजें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सरजमीन पर उतरेंगी। नए रूट्स जो हैं इंशाल्लाह ताला PIA जो है इंट्रोड्यूस कर रही है। ये पहले भी बाकू के फ़्लाइट्स जो हैं दूसरी डेस्टिनेशंस से जो दूसरे ओरिजिन से जा रही थी, लेकिन लाहौर से इसका हुआ है ये मज़ीद फ़्लाइट्स जो हैं इंक्रीज़ भी होंगी। दूसरे शहरों से भी हमारी कोशिश है कि बाकू की ट्रैफिक जो है हो, और मज़ीद मालिक के साथ भी राब्ते हैं PIA के मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जो है ना वो काम कर रही हैं। अजरबैजान के सफ़ीर ने कहा कि लाहौर के बाद इस्लामाबाद, फैसलाबाद और सियालकोट से भी बाकू के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। Both peoples of both Azerbaijan and Pakistan really working hard toward each other to make this historical, brotherhood revive in the new achievements for both countries. PIA के CEO एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने कहा मौसर हिकमत अमली से आज PIA बेहतरी की तरफ गामजन है। बाकू एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि प्योरली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और हमारी पूरी कोशिश है ये 2 की फ्रीक्वेंसी है पोस्ट हज इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर लें प्योरली ऑन मेरिट। इनिशली हम यहाँ लाहौर से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश है कि आगे इस्लामाबाद और कराची को भी टैप करें। लाहौर और अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू के दरमियान हफ्ते में 2 परवाजें चलाई जाएंगी। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत के इक़दामात। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 7 रोज़ा मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। तफसील उमर फारूक की इस रिपोर्ट में देखिए। रवां साल की दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आज़म हर इंसदादे पोलियो मुहिम का खुद आगाज़ करते हैं, जो बीमारी के खात्मे के लिए उनके अज़्म को जाहिर करता है। 7 रोज़ा मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। माजी में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया। हमने मरबूत हिकमत अमली और गैर मामूली मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें। जो फील्ड में जो टीम्स हैं उनकी भरपूर मदद करें ताकि इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए हैं। मुआशरे के तमाम तबकात इस मूजी वायरस के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। जिन इलाकों में सिक्योरिटी इश्यूज हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खातिर खा और मौसर इंतजामात किए गए हैं। जो पब्लिक मोबिलाइजेशन है उसको हमें भरपूर तौर पर आवाम को मोबिलाइज करना चाहिए कि वो इस
हवाले से हमारे सोल्जर्स बन सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे के लिए आलमी इदारा सेहत और गेट्स फाउंडेशन समेत दूसरे शिराकतदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके ताउन के बगैर पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहियान पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आला सतह वफ़द का दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया जाएगा। अपने दौरे में शेख अब्दुल्ला वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार से बातचीत करेंगे। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। दौरे के दौरान तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती और अवाम से अवाम तक के रवाबित पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद बिन हमूद अल बौसैदी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पावर शेयरिंग के उमूर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का 5वां इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ। इसी इजलास के हवाले से मजीद बताएंगे ताहिर जाफरी अपनी रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाले इजलास की मेज़बानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने की। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सेक्रेटरी की इत्तलात पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद, पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी और जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इजलास में शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इरसा मुआहदे में पानी की तकसीम का फार्मूला तयशुदा है। उन्होंने कहा कि हमें सूबाई खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होगा। कितने मिलियन एकड़ फीट पानी मैंने लेना है, कब लेना है, मैं उसको कैसे स्टोर कर सकता हूँ, मैं कितने डैम बना सकता हूँ, ये उस इरसा डॉक्यूमेंट के अंदर तफसील से लिखा हुआ। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए और उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। इसमें कुछ गैर फितरी नहीं। आइन की जो मंशा है आर्टिकल 140A की, उसके मुताबिक फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दोनों मकामी सतह पर लोगों को हासिल होनी चाहिए। तो इस पर सियासी जमातों का रिजॉल्व है, मुस्लिम लीग का भी रिजॉल्व है, पीपल्स पार्टी का भी रिजॉल्व है, तो बेहतर हल निकले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इजलास में तय हुआ है कि ज़राअत समेत तमाम अहम मुल्की मसाइल पर मिलकर आगे बढ़ना है। हमने इस इजलास के अंदर इस बात पे इत्तफाक किया कि जो मुल्की हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें साथ मिलके चलना है। बल्दियाती निज़ाम उसका हमने मुतालबा किया कि उसके इंतखाबात भी करवाए जाए। दोनों सियासी जमातों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अहम अमूर की अंजामदही के लिए बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। ये दिन हमें ईमान की अजमत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की याद दिलाता है, जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बरों में से एक हैं। वज़ीर आज़म ने ईस्टर पर पाकिस्तान और दुनिया भर में मुक़ीम मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि ईस्टर हमें यह याद दिलाता है कि रवादारी, इंसानी वक़ार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ईस्टर उम्मीद और ज़िंदगी के जश्न का मौका है। ये हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की इक़दार याद दिलाता है। आज के दिन हम इत्तेहाद और हम आहंगी के इस जज्बे को मनाते हैं जो अक़ीदे या पस मंज़र से क़तई नज़र हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ता है। ईस्टर के पुरमसरत मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने पाकिस्तान में मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि हमारा आइन अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है और हम पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मसीही बरादरी ने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया और आज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे मुअज़्ज़मुद्दीन। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मसीही बरादरी ने ज़िंदगी के हर शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा होना उनके लिए एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मजहबी हमआहंगी और रवादारी की बेहतरीन मिसाल है, जहाँ तमाम अक़लियतें मुकम्मल आज़ादी के साथ मुल्की तरक्की के अमल में शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी और कहा कि वो उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस कम्युनिटी ने क़याम पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। आज भी बहुत काबिल लोग इस कम्युनिटी के इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे पास बैरून मुल्क से, फॉरेन कंट्रीज से जितने डेलीगेशंस आते हैं तो मैं उनको बड़े फख्र से बताता हूं कि मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स का नुमाइंदा हूं पाकिस्तान के अंदर। हमें सेलिब्रेट करना है आज उन क्रिश्चियन हीरोज को जिन्होंने जंगों के अंदर कुर्बानियां दी, जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा किया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा दुनिया भर के मालियाती इदारे पाकिस्तान की मौशी तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। हमने अल्लाह ताला के फजल से मियां शहबाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया है, हालात बेहतर हुए हैं, मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे। बड़ा मिरेकुलस टर्न अराउंड है, एक मुअज्जिज़ाती टर्न अराउंड है कि इकॉनमी तरक्की कर रही है। तो यहाँ पे मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। इस मौके पर खिताब करते हुए सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी हमेशा मोहब्बत और अमन की बात करते हैं और यहाँ सबको बराबर के हकूक़ हासिल हैं। आज हम ईस्टर मना रहे हैं और यही हकीकी पाकिस्तान है जहाँ पे हम इंटरफेथ थामने की बात करते हैं, अपनी खुशियाँ गमियाँ एक दूसरे के साथ मिलके बैठ के बनाते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती समेत वजीर आज़म और आर्मी चीफ की अच्छी सेहत और तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी मुनक्किद की गई। मेरी दुआ है मेरा मुल्क तरक्की करे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए बरकत चाहते हैं, जनरल आसिम साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, पाक आर्मी के जवानों के लिए बरकत चाहते हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में मसीही बिरादरी के लोगों ने शिरकत की, जबकि ईस्टर का केक भी काटा गया। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम उठाया है और फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी की गर्ज से 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और पाकिस्तान का पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दी। इस हवाले से नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब फिल्म फंड डिस्पर्समेंट कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी रवा माली साल में पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहयान पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहयान पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया है, जबकि उनकी इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार से बातचीत और मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद डिटेल जानते हैं PTV न्यूज की नुमाइंदा नमरा सुहेल से। जी नमरा, मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहयान पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। क्या तफसीलात हैं यहाँ पर, उनकी क्या मुलाकातों का शेड्यूल है और दीगर उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहयान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में जो नायब वज़ीर आज़म है हमारे और जो अपने हम मनसब के साथ UAE के 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर जो है वो बातचीत होगी और ये वसी तर जो है मामलात से बातचीत की जाएगी। UAE के जो वज़ीर ख़ारजा है वो वज़ीर आज़म समेत
اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات کریں گے. انتہائی اہم دورہ ہے یہ کیونکہ اس میں جو ملاقاتوں کا جو عمل ہوگا اس میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کا تعاون ہے، علاقائی سلامتی اور جو عوامی روابط ہے اس پہ خصوصی توجہ جو ہے وہ دی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو علاقائی معاملات ہیں جو اس وقت موجودہ عالمی پیش رفت ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور جن معاملات سے پاکستان اور یو اے ای کو تشویش ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. آپ کو بتاتے چلے کہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی آخری ملاقات جو ہے وہ 21 فروری کو ہوئی تھی ابو ظبی میں شیخ عبداللہ نہیان سے. تو اب یہ ان کی دوبارہ جو ہے وہ ملاقات کا ایک تسلسل جو ہے وہ یہاں پہ بن پڑا ہے، اور دونوں یہ جو دورہ ہے یو اے ای کے وزیر خارجہ کا یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا، اور یہ بھی عکاسی کرتا ہے یہ دورہ کہ یو اے ای اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. جی بہت شکریہ نمرہ سہیل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. ان کا استقبال کیا ہے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے. دورے میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. دورے کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، علاقائی سلامتی اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پر بھی گفتگو ہوگی. بلیٹن میں اب آگے بڑھیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کے لیے پاکستان آنے پر کوئی ویزا نہیں، جب چاہیں آئیں. محسن نقوی نے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے میں ملاقات کی. سعودی عرب کے سفیر نے وزیر داخلہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کے معاشی اور سماجی شعبوں میں سعودی حکومت کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانے کے لیے پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط متعارف کرائی جا رہی ہیں. سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں. وزیر مملکت داخلہ طلال چوہدری نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا. کوئی بھی ملک کسی غیر ملکی کو غیر قانونی قیام کی اجازت نہیں دیتا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام آ رہا ہے. ہماری پالیسی صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے، ہر دنیا کے ملک کے لیے ہے کہ 1 ڈاکومنٹ رجیم کا مطلب ہے کہ تمام لوگ پاسپورٹ پہ، ویزا پر پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے، تعلیم کے لیے، میڈیکل کے لیے، بزنس کے لیے آئیں. ہمارے زیادہ تر افغان بھائی جو ہیں وہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے ادھر ہیں، تو وہ واپس جائیں گے، ڈاکومنٹ بنائیں گے، آئیں گے، کوئی اعتراض نہیں. بہرحال یہ پالیسی جو ہے یہ کنٹینیو رہے گی. پاکستان جو ہے وہ اپنے ایک ٹیک آف سے کہیں گے مطلب ہے کہ اس سے گزر چکا ہے. معیشت میں جو ہے وہ استحکام آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور اس چیز کو انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے. روانڈا کے وزیر خارجہ اولیویے نیدوہنگریا نے اسلام آباد میں مختلف مقامات کا دورہ کیا. روانڈا کے وزیر خارجہ نے اپنے وفد کے ہمراہ فیصل مسجد کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے مسجد کی لائبریری بھی دیکھی. وفد کو قرآن کریم کے منفرد نسخے اور مخطوطات بھی دکھائے گئے. وفد نے اسلام آباد کے خوبصورت مقام دامنے کوہ کا بھی دورہ کیا. وفد کے ارکان پہاڑ کی بلندی سے اسلام آباد کا دلکش نظارہ دیکھ کر بے حد محظوظ ہوئے. ان کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنا ہے. ناظرین، ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل ایف ٹی آئی فورم کا 29 سے 30 اپریل کو اسلام آباد میں انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ فورم حکومت پاکستان اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کا مشترکہ تاریخی اقدام ہے. ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی سیکریٹری جنرل دیما الیاحیہ کی جانب سے اس اقدام کا خیر مقدم کیا گیا. دنیا بھر سے 500 سے زائد سرمایہ کاروں، رہنماؤں اور ماہرین کی فورم میں شرکت متوقع ہے. عالمی ماہرین کی شرکت سے ڈیجیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہوں گے. پاکستان کا 2030 تک ڈیجیٹل معیشت کے ذریعے $60 ارب کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. فورم میں سرمایہ کاری کے لیے تیار 75 سے زائد سٹارٹ اپس شریک ہوں گے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد انخلاء کا عمل جاری ہے.
गुज़िश्ता रोज़ 4000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,76,000 तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन जनरल जीन पैरला क्रुआ ने एक्स पर अपने पैगाम में अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने पाकिस्तानी पुलिस अफसर फैसल शाहकार के ताउन पर भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया, जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की क़यादत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ अमन मिशन में अहम पुलिसिंग सरगर्मियों के दौरान ख़तरात से निपटने के लिए दरकार जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल पर भी तबादला ख्याल हुआ। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से, जहाँ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व नजरिए के जारहाना फरोग की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि गैर कश्मीरियों की आबादकारी, जमीनों की गैर मकामी लोगों को फरोख्त और आबादी के तनासुब में जबरी तब्दीलियाँ इलाके के मुस्लिम अक्सरियती तशख्खुस को मिटाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने खबरदार किया कि भारत इलाके में आबादी का तनासुब तेजी से तब्दील करने के लिए जालिमाना इकदाम कर रहा है। भारतीय हुकाम ने कश्मीरियों को उनकी इमलाक से महरूम करने की अपनी मजमूम मुहिम जारी रखते हुए जिला बारामूला में मजीद 2 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली हैं। भारतीय फौजियों ने पूंछ और कठुआ अजला में महासिर और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला आज भी जारी रखा। इस दौरान मकीनों को हिरासा और मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय पुलिस ने सोशल मीडिया पर आजादी के हक में मवाद पोस्ट करने पर जिला बांदीपुरा के इलाके हाजन से एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय रियासत कर्नाटक में जमीयत उलमा की क़यादत में हज़ारों अफराद ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इसे मोदी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को उनके आइनी और मजहबी हुकूक से महरूम रखने की एक और साजिश करार दिया। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक अवाम का कहना था कि वक्फ मुसलमानों का हक है और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इसे छीनने की कोशिश करे। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मोदी सरकार पॉलिसीज़ का मकसद मुसलमानों को दीवार से लगाना और उनके मजहबी और समाजी इदारों को निशाना बनाना है। एहतजाज में शरीक मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वक्फ तरमीमी बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। छोड़ देगा वो आधी को लेके हाथ में रुख मोड़ देगा जो मिलके फन नु मैक्स कर पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें मैच में कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। पेशावर ज़ल्मी ने इवेंट में अब तक 3 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 1 मैच में कामयाबी हासिल की और 2 में नाकामी का सामना करना पड़ा। कराची किंग्स ने अपने इब्तदाई मैचेस में से 2 जीते, जबकि 1 में नाकामी हुई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पेशावर ज़ल्मी की पहली कामयाबी, जबकि मुल्तान सुल्तान्स को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से हराया। दिलचस्प मुकाबले की तफसील जानते हैं ज़ीशान क़य्यूम से। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी फील्डर हैं, लेकिन उनके सर के ऊपर से रन्स बनाए, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। बहुत बड़ा शॉट, बड़ी बेदर्दी से खेला टॉम कोला कैडमोर ने। ओह, लाजवाब, हैरत अंगेज हारिस। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट पीएसएल के 10वें एडिशन से बाहर हो गए। मैथ्यू शॉर्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाली इंजरी के बायस इवेंट से दस्तबरदार हुए। पाकिस्तान आमद के बाद मैथ्यू शॉर्ट की इंजरी से रिकवरी बेहतरीन थी, ताहम दोबारा तकलीफ के बायस उन्होंने इवेंट से दस्तबरदार होने का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ ने मुश्तरका तौर पर मैथ्यू शॉर्ट की दस्तबरदारी पर फैसला किया, जिसके बाद मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया वापस रवाना हो गए।
PSL فرنچائز لاہور قلندرز انتظامیہ نے قلندر اسکواڈ کے لیے عشائیے اور گولف کی سرگرمیوں کا اہتمام کیا۔ ملتان میں پرتکلف عشائیے میں غیر ملکی کھلاڑیوں سمیت پوری ٹیم اور مینجمنٹ نے شرکت کی۔ عشائیے کے بعد کھلاڑیوں نے قریبی گولف رینج کا رخ کیا اور کرکٹرز نے گولف سرگرمیوں سے خوب لطف اٹھایا۔ سرگرمیوں کا مقصد اراکین کے لیے تفریح اور آرام کا موقع فراہم کرنا تھا۔ PSL 10 سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب اور یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے ہیں غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی ظالمانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں مزید 44 فلسطینی شہید جبکہ 145 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی لڑائی میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک 51,200 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,16,800 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں غزہ مارچ کیا گیا۔ مارچ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ فلسطین سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا ہے، مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ غزہ کی کامیابی دنیا بھر کے مظلوموں کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مقدمہ لڑنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایسٹر تہوار کے موقع پر 30 گھنٹے کے لیے یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے مطابق ہم یوکرین کی جانب سے بھی جنگ بندی پر عمل کی امید رکھتے ہیں، جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کی جانب سے عارضی جنگ بندی کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی افواج کی جانب سے کیف پر ابھی بھی حملے جاری ہیں۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ ماسکو اور کیف کے درمیان گزشتہ 246 جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ ناظرین، امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف سینکڑوں مظاہرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہزاروں مظاہرین نے امریکہ بھر میں سینکڑوں ریلیاں نکالیں۔ مظاہرین نے ملک پدری، بجٹ میں کٹوتی، غزہ کی جنگ اور دیگر مسائل کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں بھی بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہو گئے، جبکہ نیو یارک، فلوریڈا سمیت مختلف مقامات پر مظاہرین اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، آج کراچی میں پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ ہبس اور لو کے تھپیڑوں سے شہری دن بھر بحال رہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 3 روز تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ دیکھتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی یہ رپورٹ۔ شہر قائد میں آج دن میں شدید گرمی اور ہوا میں نمی کے زیادہ تناسب کے باعث ہبس کی کیفیت رہی۔ سڑکوں پر ٹریفک کم رہا جبکہ لوگ سائے کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ صبح 11 بجے درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ سپہر میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو عبور کر گیا۔ گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کی دکانوں کا رخ کیا۔ سپہر کے بعد ہوا میں کم نمی کے باعث لو چلتی رہی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سمندری ہوائیں رکنے سے ہبس اور گرمی کی شدت آئندہ چند دنوں تک برقرار رہ سکتی ہے۔ مزید 2-3 روز تک ہیٹ ویو جاری رہنے کا امکان ہے۔ ایسے میں شہریوں، خصوصاً بچوں، معمر افراد اور محنت کشوں کو چاہیے کہ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کریں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور ناظرین، آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد 43، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص اور بٹھی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل اسلام آباد 32، لاہور 39، کراچی 40، پشاور 34 اور کوئٹہ میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
नाज़रीन, मौसम के हवाला आपने जाना, अभी आपको बताएंगे कराची में छठी इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिससे खिताब करते हुए वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत की सहूलतों की फौरी फराहमी में टेक्नोलॉजी और मोबाइल हेल्थ सर्विस इंतहाई अहम है और हुकूमत की कोशिश है कि इसका दायरेकार को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलकर कोशिश करना होगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के CEO ने कहा कि ड्रैप सेहत के मसाइल पर तहकीक के लिए फंड्स फराहम करेगा। वज़ीर ममलकत तवानाई अब्दुर्रहमान कांजू ने वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के इक़दाम को अवाम के लिए बड़ा रिलीफ और इसे मुस्बत मौशी पॉलिसियों का नतीजा करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। वज़ीर ममलकत बराए तवानाई अब्दुर्रहमान खान कांजू ने लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने आवाम को बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट कमी करके बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम की काविशों से एक बड़ा रिलीफ जो है 7.5 रुपए उसका रिलीफ दिया गया और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। 70 साल में जो काम नहीं हो सके वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं इस टाइम। वज़ीर ममलकत ने कहा कि कोशिश है कि हर शोबे ज़िंदगी में लोगों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ज़िला लोधरा में इस वक्त रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है और वो जल्द लोधरा के लिए मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने कहा है कि किसी को अमन अमान खराब करने या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईस्टर मोहब्बत और हम आहंगी का त्यौहार है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। इसी हवाले से मजीद बताएंगे ओवैस खटाना अपनी इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने कहा कि माशरे में सियासी दहशत गर्द या शिद्दत पसंद ग्रुप अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लोगों के कारोबार को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। फूड चेन्स पर हमले से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाया गया। ऐसे वाक़यात से मुल्की तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि किसी को गजा के नाम पर दहशत गर्दी नहीं करने देंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क को कोई भी मुट्ठी भर दहशत गर्द या शिद्दत पसंद ग्रुप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है। ज़ख्मी भी पाकिस्तानी शहरी हुए हैं और हलाक भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हुआ है। और ये गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीन के नाम पर ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनन ना पाकिस्तानी है ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारी मसीही बरादरी जोशो खरोश से ईस्टर का त्यौहार मना रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि इस्लाम अक़लीतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स देता है। ईस्टर जो है वो खुशियों का, मोहब्बत का और हम आहंगी का त्यौहार है और इस त्यौहार के अंदर पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने मसीही बहन भाइयों की इन खुशियों में शरीक है। अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर फोरम पर फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा है। पाकिस्तान में अमन और मुल्की तरक्की में रुकावट पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मोहम्मद वैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ममलकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सिख यात्रियों के लिए हमेशा शानदार इंतजाम किए जाते हैं। पाकिस्तान मजहबी हम आहंगी की रोशन मिसाल है, जहां तमाम मज़ाहब के पैरोकार अपने त्यौहार मिलकर मनाते हैं। उन्होंने मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि पाकिस्तानी अवाम एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते हैं, यही हमारी कौमी शनाख्त है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने लोधरा में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा मेहर हाजी रशीद अहमद मरहूम की रस्म कुल में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने मरहूम के सोगवारान से तासियत का इजहार किया और कहा कि इलाके के लिए उनकी सियासी और समाजी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मरहूम के फर्जंद मामून रशीद की दस्तारबंदी भी की। सजादा नशी दरबार मूसा पाक शहीद मुल्तान पीर सैयद अबुल हसन गिलानी ने मरहूम की बुलंदी दर्जात और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल ने समंदरी में समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी बशीर अहमद के इंतकाल पर उनके बेटे सरदार तनवीर अहमद से ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल और मारूफ कारोबारी शख्सियत शाहिद चौधरी ने कहा कि दुख की घड़ी में अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। चेहलुम की दुआ में रुकन कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर, अराकीन सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गिल और चौधरी शाहिद, सुपरिटेंडेंट जेल अली अकबर, चीफ इंजीनियर फेस्को आमिर पुन्नू, मरहूम के अहले खाना और अजीज़ व अकारिब समेत दीगर मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की।
नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर ऐसे काबिल फ़ख्र नौजवान तैयार कर रही है जो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे अख्तर खान। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर में एलुमनाई एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब के मौका पर इजहार ख्याल करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि बासलाहियत फारिग तहसील तलबा और तालिबात ने हमेशा मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर इल्म, तहकीक और क़यादत के मैदान में काबिल फ़ख्र रिवायत बरकरार रखी है। आज ये बहुत अच्छा मौका था हमारे लिए, जो हम सब दोस्त एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो वो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की 1988 में। अब यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज तो एक बहुत ही मिक्स सी फीलिंग है, रोना भी आ रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है। शुरका ने अपने तजर्बात शेयर किए। हर जगह पे जो है मतलब आपको यूवीटी के ग्रेजुएट्स नजर आएंगे। मैं खुद भी प्राउड फील करता हूँ कि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में था। तकरीब का मकसद फारिग तहसील तलबा को अपने मादरी इल्मी से जोड़े रखना और बाहमी रवाबित को फरोग देना था। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत चीन पहुंचने वाले 300 पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स के एहसास में सुबह शांसी के शहर जान में तकरीब का एहतमाम किया गया। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफिस मिशन बिलाल महमूद चौधरी ने चीन के सीनियर हुकाम के हमरा पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स को खुशामदीद कहा। पाकिस्तानी ज़रई प्रोफेशनल्स नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी और यांगलिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज में ज़रई टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली से निपटने वाली ज़राअत, बेहतरीन बीजों की पैदावार, जदीद काश्तकारी और लाइफ स्टॉक समेत ज़राअत से मुताल्लिक 9 मुख्तलिफ शोबों में 3 माह की तरबियत हासिल करेंगे। शुरका को पाकिस्तान चीन दोस्ती और 3 माह के तरबियती प्रोग्राम के दायराकार और दोनों ममालिक के दरमियान ज़रई शोबे में तावन से मुताल्लिक आगाह किया गया। नौजवानों की इस्तेदाद कार में इजाफे का ये इकदाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के ज़रई शोबे को जदीद बनाने और नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी महारतों से आरास्ता करने की कोशिशों का हिस्सा है। प्रोग्राम के तहत 1000 नौजवान ज़रई नौजवानों को ज़राअत और लाइफ स्टॉक के 9 मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में सजा किताबों का मेला तलबा और इल्म दोस्त अफराद के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं फरहान मिर्जा की ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में जनूबी पंजाब लाइब्रेरी बुक फेस्टिवल में मुल्की और बैनुल-अक़वामी पब्लिशर की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हज़ारों कुतब पेश की गई हैं। ज़रई तहकीक, साइंस, अदब, मजहब और जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल ये किताबें तलबा को इल्म की दुनिया से जोड़ने का खूबसूरत जरिया बनी हुई हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में किताब बुक रीडिंग की जो हॉबी है वो ख़त्म हो चुकी है। इससे पहले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग में इन्वॉल्व थे, जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होता था और ये एक बहुत अच्छी हॉबी है। लेकिन इस तरह के फेस्टिवल्स का ये फ़ायदा होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ता है। बच्चों को पता हो कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक हमने कैसे पहुंचना है। ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो हमारे कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट के डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आते हैं। हम चाहते हैं कि उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट बुक्स और उनके एडिशन हैं वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं। मेले में खुसूसी डिस्काउंट, नायाब किताबें और अदीबों से मुलाकात ने इस इवेंट को मजीद यादगार बना दिया है। किताब मेले में इल्म की खुशबू हर सिमत फैली हुई है। तुलबा कुतुब खरीद रहे हैं और मुताले को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पुरजोश हैं। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। खेलों की खबरों में एक बार फिर से खुशामदीद। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 क्वालिफायर की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली पाकिस्तानी विमेन टीम की 4 खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। फातिमा सना को टीम की कप्तान नामजद किया गया है। दीगर खिलाड़ियों में मुनीबा अली, निशरा संधू और सादिया इकबाल शामिल हैं। वेस्ट इंडीज की 3, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की 2-2 खिलाड़ियों को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद के F9 पार्क में रीजनल नेज़ाबाजी चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। चैंपियनशिप में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलुम, अटक, आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न के नेज़ाबाजों ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने भी मुकाबले देखे। नेज़ाबाजों ने कमाल महारत और फ़न का मुजाहरा किया और मखसूस रफ्तार से दौड़ते हुए ज़मीन में गड़े पैग निकाले, जो टेंट पैगिंग का असल मकसद होता है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए इक़दामात कर रही है। हमारे खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं।
वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि पंजाब में रिवायती खेलों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिससे इन खेलों से मुंसलिक खिलाड़ियों को मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलेगी। विफाकी वजीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन वट्टू ने कहा है कि वापडा मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। छठे चेयरमैन वापडा गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मोइन वट्टू ने कहा कि मुख्तलिफ खेलों में वापडा के खिलाड़ियों ने नुमाया मुकाम हासिल किया है। विफाकी वजीर ने कहा कि खेलों के मैदान आबाद रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तकरीब से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सज्जाद गनी ने भी खिताब किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में गोल्फ टूर्नामेंट में आला कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और उनकी कारकर्दगी को भी सराहा। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। पीटीवी न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा। दुरुस्त हर वक्त।